Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we'll be starting our new unit, that is magnetic effects of electric current, and I hope that and I believe that you will enjoy this very unit very much, because all the topics in this very unit are very much practical. And in the next coming classes I will be giving some demonstrations here, and that will help you more to understand the basic concepts of magnetism, inshallah. So today we will be going with few basic concepts related to this very unit, that is magnetic effects of electric current. We'll be discussing magnets and then magnetic field lines, and Oersted experiment. Let's move ahead. Now first of all, what is magnet? Magnet हम किसको बोलते हैं? As we have been playing with these magnets since our childhood, बचपन से हम खेलते आ रहे हैं with these magnets. तो for example, I am having a magnet here. Here I am having a magnet, and this very magnet is having some special properties. This magnet is a circular magnet. For example, I am having here a key, and this key is made, the tip of the key is made up of iron. When I will keep this key in front of this magnet will attract it. That means magnets are having attractive properties, because all the magnets, they attract magnetic substances. For example, iron. It is the one thing. If you will take a bar magnet, that bar magnet, if you will suspend that bar magnet, that will align itself in the north-south direction. For example, if it is a bar magnet, and if you will suspend it with a thread, then after some time you will see that it is one end will be towards the north pole of the earth and other end will be towards the south pole of the earth. That means it is having directive properties also. So what is magnet then? Magnet is a substance having both attractive and directive properties. Magnet is a substance having both attractive and directive properties. It is a magnet. And we know that magnets are natural as well as man-made. Natural magnets which we find in the Earth's crust, for example magnetite Fe3O4 जो पाया जाता है, that is considered to be the ore of iron. उसे फिर iron भी हम निकाल सकते हैं. And artificial magnets are those magnets which are prepared artificially. For example, जो भी artificial magnet हम लाते हैं, जो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना होता है, उस पर लिखा होता है ALNICO, अल-निको. दैट मीन्स एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. दैट मीन्स जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो अलॉयज होते हैं, फिर उनमें फेरोमैग्नेटिज्म होता है, तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं. एंड वन थिंग यू विल रिमेंबर दैट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल मैग्नेट्स. जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं. और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में भी जब हम देखते हैं जो टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम फिर आगे जाके पढ़ेंगे, वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है. तो इट वाज अबाउट ए मैग्नेट. मैग्नेट इज हैविंग डायरेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज. एक तो अट्रैक्ट करता है जो भी मैग्नेटिक सबस्टेंसेस होते हैं, और अपने आप को अलाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल कंपास नीडल आप देख लीजिए, उसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है दैट अलाइन्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नाउ व्हाट अबाउट द शेप्स ऑफ मैग्नेट्स? देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. यू विल फाइंड मैग्नेट्स विद डिफरेंट शेप्स. फॉर एग्जाम्पल, here I am having this magnet. It is a circular magnet, and you might have seen bar magnets. They are like bars. Bar magnet. This one is here bar magnet. I will point out. This one is a bar magnet. South pole and north pole. This is circular and this is disc type, and it is a magnetic needle. And this one is horseshoe type magnet. I will show you more clearly. This is horseshoe type magnet. It is north pole and south pole. Now in the coming classes we will discuss these magnetic fields by different magnets, that we will discuss later on. It was about the shapes. यानी मैग्नेट्स एक शेप के नहीं होते हैं. देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. मार्केट में जाके भी हम देख सकते हैं. इवन इन योर स्कूल्स यू आर हैविंग दोज साइनस किट्स. इन दोज साइनस किट्स वहाँ पे भी
रखे गए हैं। हर एक तरह के सिलेंड्रिकल मैग्नेट रखा गया है, उसमें बार मैग्नेट रखा गया है, सर्कुलर मैग्नेट रखा गया है, हॉर्स शो टाइप मैग्नेट रखा गया है, यू शेप्ड मैग्नेट वगैरह, ये सारे मैग्नेट्स उसमें रखे गए हैं। इट वाज अबाउट द शेप। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन टू इट। हियर आई एम हैविंग ए मैग्नेट, जो मैंने पहले बोला था, हियर आई एम हैविंग ए की। When I am taking this key closer to this magnet, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, यहां पे इस पॉइंट पे ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं आगे लेता हूं फिर भी अट्रैक्ट नहीं करता है। इससे आगे मैं लेता हूं, ये इसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। यानी हर एक कोई मैग्नेट जो होता है, उस मैग्नेट के अराउंड एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर वो अपना मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो एक्सर्ट करता है। यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना या किसी चीज को रिपल करना। अगर हम इसका अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल ही लाएंगे तो वो तो रिपल करेंगे, लेकिन रिपल यहां से नहीं करेगा। एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल होगा। यानी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है या रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी एक बाउंड्री के अंदर होती है। ऐसी वो बाउंड्री अराउंड द मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड नाउ? द स्पेस अराउंड a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called the magnetic field. कोई भी मैग्नेट जिस हुदूद में, जिस दायरे में वो अपना मैग्नेटिक फील्ड चाहे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या रिपल्सिव प्रॉपर्टी एक्सर्ट करती है, उसको उसका मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। अगर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, यू सी सम, these are scattered iron filings here, but these scattered iron filings they have made a certain arrangement. एक अरेंजमेंट इन्होंने बनाया है। इमछन इथे छकराव नाम से कहते इमोशाक अरेंजमेंट बनोमुत, ये कत छुमो बनोमुत। यहां पे एक्चुअली क्या किया गया है, यहां पे एक शीट रखा गया है, उस शीट के नीचे बार मैग्नेट रखा गया है और उस शीट के ऊपर हमने स्प्रिंकल की है आयरन फाइलिंग्स। उन आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया अराउंड दिस मैग्नेट इन विद अ पर्टिकुलर पैटर्न। यहां पे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ बार मैग्नेट, इट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहां से हमने आयरन फाइलिंग्स डाली तो इन आयरन फाइलिंग्स ने एक अरेंजमेंट बना लिया, और ये अरेंजमेंट भी जो है, यू कैन सी this arrangement has been made within a boundary. This boundary is its magnetic field. यानी इससे बाहर न इनको ये अट्रैक्ट करता है न रिपल करता है, न किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा न रिपल करेगा। That is its magnetic field. And inside this magnetic field, these iron filings, they have arranged themselves in a particular pattern. And this pattern, अगर आप देखेंगे, these are like lines. These are like lines. These lines are scattered here, and when we go away from the poles, ये थोड़ी दूर हो जा रही हैं, लेकिन पोल्स के नज़दीक ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, कंजस्टेड हैं पोल्स के नज़दीक। पोल्स से दूर जाते हैं तो ये थोड़ा दूर दूर का शांति ले हैं। This pattern, these lines, imaginary lines, these are called magnetic field lines या magnetic lines of force. यहां पे हम इनको बोलते हैं these curved paths along with the iron filings arrange themselves due to the force acting on them in the magnetic field of the bar magnet are called magnetic lines of force. इनको magnetic lines of force बोलते हैं। जो ये magnetic field lines होती है, these are imaginary lines. जब भी हमारे पास कोई, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास ये मैग्नेट है, इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, इसके अराउंड भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, लेकिन ऐसे मैं नहीं देख सकता हूं।
लेकिन अगर मैं इसको अरेंज करूंगा उस तरीके से, फिर आयरन फाइलिंग्स को लाऊंगा या कोई और अरेंजमेंट करूंगा, देन आई विल बी एबल टू डिटेक्ट, या इफ आई विल बी टेकिंग ए कंपास नीडल, I will be able to detect the direction of these magnetic field lines. लेकिन ऐसे ये नहीं दिखती है. These are imaginary lines, but when we make use of bar magnet and iron filings, we can find out the arrangement of these magnetic field lines around a bar magnet, and we can even find the direction of these magnetic field lines around a bar magnet. That is possible with the help of a compass needle. उससे हम इनकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं. That we will discuss in next classes, inshallah. Now, what are the properties of these magnetic field lines? These magnetic field lines are having main three properties. There are mainly three properties of magnetic field lines. Number one, they are directed from north pole to south pole. If it is a north pole, it is a south pole. Their direction is from north to south. देखिए, north to south. यहाँ पे जो एक curved lines है, their direction is from north to साउथ. नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में समा जाती है, नॉर्थ टू साउथ. एंड क्राउडेड नियर द पोल्स एंड फार अपार्ट नियर द मिडल. यहाँ पे क्राउडेड है, जैसे अभी भी हमने पैटर्न में यहाँ पे दिखाया था. यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसीलिए ये आयरन फाइलिंग्स नज़दीक है क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड है. यहाँ पे फिर दूर दूर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं these magnetic field lines are crowded near the poles and far apart near the middle, and they never intersect each other. ये एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती है? For example, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा direction of magnetic field, direction of magnetic field is like this, tangent to this line, that will be the direction of magnetic field. अगर अब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर दो टेंजेंट बन जाएंगे, दैट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. सो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स: डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्राउडेड नियर द पोल्स एंड फार अपार्ट नियर द मिडल, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. It is Oersted, actually he gave the relationship between electricity and magnetism. What he did, here is shown an arrangement. Here is a battery that provides potential difference, and here is a circuit, and here is a compass needle. Here is a switch. Oersted ने क्या देखा? उसने देखा कोई भी इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके थ्रू जब करंट कैरी करती है तो जो ही करंट कैरी करती है तो उसने देखा कंपास नीडल को उसके पास रखा था, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई. उससे क्या पता चला? उसे पता चला दैट दिस इलेक्ट्रिक करंट, या वी कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर, इट कैरीज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि जब मैग्नेट अराउंड इट, जब मैग्नेटिक फील्ड है तभी जाके इसने कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट किया, अदरवाइज नहीं करती. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कोई भी, इफ इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इसमें करंट पास हो रही है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मुझे कैसे पता चलेगा? आई हाउ टू टेक ए कंपास नीडल, मैं इसके नज़दीक लाऊंगा, वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी. और डिफ्लेक्ट तब करेगी जब स्विच ऑन होगा, जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती होगी, तब वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, अदरवाइज डिफ्लेक्ट नहीं करेगी वो. दैट मीन्स जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. इट वॉज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. हियर इज एन अरेंजमेंट ऑफ दिस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के थ्रू हमने, इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस वन, दिस पर्पल वन, इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, and here is a key, and there is a potential difference. When we apply some potential difference, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आ रही है. and here is a compass needle, that compass needle shows deflection. जब हम स्विच ऑफ करेंगे डिफ्लेक्शन विल बी स्टॉप्ड हियर, डिफ्लेक्शन नहीं होगी. जो ही हम की ऑन करते हैं इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है. इफ अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं, देयर इज़ अ वीडियो ऑन यूट्यूब जो मैंने दिखाया है, वहाँ पे मैंने दिखाया है पूरा कैसे ये डिफ्लेक्ट करता है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस वो मैं दिखाऊंगा कैसे डिफ्लेक्ट होती है ये. तो इट वाज अबाउट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. एंड नाउ देयर इज़ ए पॉइंट
कि ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट किस साइड में करेगी। अगर यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रही है, क्या ये राइट को डिफ्लेक्ट करेगी कि लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करेगी। वो पता करने के लिए कि ये कंपास नीडल राइट में डिफ्लेक्ट होगी कि लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, उसके लिए देयर इज ए रूल दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स स्विमिंग रूल। फॉर एग्जांपल, हियर इज ए सर्किट and here is positive and negative terminal of the battery. That means direction of current will be like this. Near the compass needle it will be downwards. This direction will be downwards. When the direction of current will be downwards, compass needle will deflect towards right. And here is the positive and negative terminal. Positive से ऐसे अगर डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, अपवर्ड डायरेक्शन जब होगी, अपवर्ड्स में यहां पे क्या होगी, देन इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए कैसे। एम्पियर स्विमिंग रूल बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप ऐसे स्विम करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन यू स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, then you have to take your left hand like this. That means deflection will be towards left when you are in the direction of electric current. When you are swimming opposite to the direction of electric current, then you have to wave your this right hand. That means when the direction of current will be downwards, then the deflection will be towards right. मैं फिर से समझाता हूं। When the direction of current is upwards, for example here is a conductor, the direction of current is upwards. When the direction of current is upwards, here is a compass needle, the needle of that compass that will deflect towards left. When the direction of current is downwards, then the compass needle will deflect towards right. यहां पे इसको समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। Let the observer imagine himself. We have to imagine, otherwise ऐसी कोई possibility नहीं है that we swim in the direction of electric current. Let us imagine that we are swimming along the conductor in the direction of current and facing the magnetic needle. Magnetic needle को face कर रहे हैं. Then the north pole of the needle will be deflected towards his left hand. जैसे मैंने भी बोला था. When you are moving, when you are swimming in the direction along the conductor, but in the direction of electric current facing towards the magnetic needle, the north pole of the magnetic needle that will deflect towards the left hand side. When you are moving, when you are swimming but against the direction of electric current, then the deflection of the north pole of that magnetic needle that will be towards right. It was all about magnets, magnetic lines of force, then Oersted experiment and Ampere's swimming rule. Inshallah, in the next class, we will go ahead with different activities. Till then, Khuda Hafiz, take care.